देखिए, ऑर्डर 39 रूल 1 to 5 अपन ने पढ़ा टेम्परेरी इंजंक्शन के संबंध में। इसी ऑर्डर 39 में यदि आप रूल 6 to 10 की बात करें तो आपको देखेगा कि दीज आर इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। द कोर्ट इज वेरी मच एंटाइटल्ड टू पास द इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। What is the meaning of interlocutory orders? Interlocutory orders are orders passed by the court during the pendency of a suit. जब सूट की ट्रायल चल रही है उस समय कोई ऑर्डर पास कर देना। कैसा ऑर्डर? which do not determine the substantive rights of the parties in respect of the subject matter of the suit but relates to protection और अदरवाइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। ये मैंने आपको इंटरलोकेटरी ऑर्डर बताया। अब अपन इंटरलोकेटरी ऑर्डर 6 से लेकर 10 तक पढ़ें, उससे आप एक मेरी कमेंट्री छोटी सी सुन लीजिए। उसके बाद अपन एक्ट में भी पढ़ेंगे, रूल 6, 7, 8, 9, 10 एक्ट में भी पढ़ेंगे। लेकिन 5 मिनट की बात अपन कर लें तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। ये आपको समझना, जब एक्ट से अपन पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा आपको समझना। रूल 6 to 10 of order 39 mentions certain interlocutory orders. The court has the power to order interim sale of movable property which is the subject matter of the suit or is attached before judgments in such suit which is subject to speedy and natural decay. देखिए, यहाँ तक आप समझिए। ऑर्डर 39 रूल 6 की एप्लीकेशन कोई भी पक्षकार लगाता है। जैसे मान लीजिए 500 क्विंटल आम, ए और बी के बीच में झगड़ा हो गया, वो पार्टनर्स हैं, वो अदालत में आ गए। ऑर्डर 39 रूल 1-2 की भी एप्लीकेशन लगाई उन्होंने अपने दावे के साथ, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, दावा करने के तुरंत बाद एक पक्षकार ने ऑर्डर 39 रूल 6 की एप्लीकेशन लगाई कि साहब मुकदमा तय करने में या टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन तय करने में टाइम लग जाएगा। ऐसी सूरत में मैं ऑर्डर 39 रूल 6 की एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। ये आम जो हैं वो नेचुरल डिके होने वाली चीज़ है, स्पीडी डिके होने वाली चीज़ है। यदि मान लीजिए समय लग गया और आम गोदाम में पड़े रहे तो 500 क्विंटल आम वेस्ट हो जाएंगे, पार्टीज़ को भी कुछ नहीं मिलेगा। इट विल बी ए मोर ओवर नेशनल वेस्टेज। हमारा तो नुकसान है ही, साथ में नेशनल वेस्टेज भी है। ऐसी सूरत में इन आमों को तुरंत प्रभाव से बेच दिया जाए और जो पैसा आए वो कोर्ट की कस्टडी में रख लिया जाए, और जो भी तय होगा बाद में उस पैसे का जिस भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा वगैरह वगैरह, जो भी डिस्प्यूट है उसके तहत जो भी निर्णय होगा, उसके संबंध में जो भी निर्णय होगा दे दिया जाएगा। तो ऑर्डर 39 रूल 6 आपने समझा। एक्ट में भी अभी पढ़ेंगे अपन। इट कैन ऑर्डर फॉर द detention, preservation or inspection of any property which is the subject matter of such suit. It can authorize any person for the aforesaid purposes to enter upon or into any land or building in the possession of any other party to such suit, or authorize any samples to be taken or observations to be made for experiment to be tried for obtaining full information or evidence। ये ऑर्डर 39 रूल 7 में आपको मिलेगा, जिसकी कमेंट्री मैंने आपको बताई अभी। एन एप्लीकेशन बाय द प्लेंटिफ फॉर एन ऑर्डर अंडर ऑर्डर 6 रूल 7 मे बी मेड अंडर रूल 6 और 7 मे बी मेड at any time after institution of the suit. An application by the defendant for a like order may be made at any time after appearance. Before making an order under Rule 6, Rule 7 or Rule 7 on an application made for purposes
The court shall accept where it appears that the object of making such order would be defeated by the delay. Direct notice thereof to be given to the opposite party. ये ऑर्डर 39 रूल 8 में मिलेगा आपको. When the land in suit is liable to government revenue or is a tenure liable to sale and the party in possession neglects to pay the revenue or rent, the court may order any other party, order to any other party to the suit in case of an order for sale of the land to be put in immediate possession of the property. ये ऑर्डर 39 रूल 9 की बात मिलेगी आपको. Where the subject matter of the suit is money or other things capable of delivery and any party thereto admits that he holds such money or things as a trustee for another party or that it belongs or is due to another party, the court may order the same to be deposited in the court or delivered to the last number party. ये ऑर्डर 39 रूल 10 में आपको मिलेगा. ये लब्बे लबाब अपन ने छोटी सी कमेंट्री की बात की. अब अपन बात कर लेते हैं ऑर्डर 39 रूल 6 क्या कहता है. देखिए, द कोर्ट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू ए सूट ऑर्डर द सेल, मैंने कहा ऑर्डर द सेल बाय एनी पर्सन नेम्ड इन सच ऑर्डर and in such manner and on such terms as it thinks fit of any movable property being the subject matter of such suit or attached before judgment in such suit which is subject to speedy and natural decay or which for any other just and sufficient cause it may be desirable to have sold at once. मैंने आपको आमों का एग्जाम्पल दिया कि 500 क्विंटल आम, उसका कोई झगड़ा, ऑर्डर 6 रूल ऑर्डर 39 रूल 6 में एप्लीकेशन लगाई कि साहब ये आम सड़ जाएंगे, नेचुरल डिके हो जाएंगे, स्पीडी डिके वाली चीज़ है, इनको बेच दीजिए, पैसा कस्टडी में ले लीजिए, मुकदमा तय हो जाएगा, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना. या अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, कोई प्रॉपर्टी को जजमेंट से पहले अटैच कर दी और वो स्पीडी एंड नेचुरल डिके होने वाली है, उसमें भी ये लागू हो जाएगा. तो बात समझ में आई. ऑर्डर 39 रूल 6 इज रिलेटेड पावर टू ऑर्डर इंटरिम सेल. इसी तरह से ऑर्डर 39 रूल 7 की बात करिए. डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट. सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट के संबंध में क्या बता रखा है, उसके संबंध में डिटेंशन की बात है, प्रिजर्वेशन की बात है, इंस्पेक्शन की बात है. उसका एक तरीका होता है. द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, राइट, इफ इट थिंक्स फिट, मेक एन ऑर्डर फॉर द डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, द इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट एज टू विच एनी क्वेश्चन मे अराइज देयरइन. नंबर 1. नंबर 2, फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेज अफोरसेड ऑथोराइज एनी पर्सन टू एंटर अपॉन or into any land or building in the possession of any other party to such suit. ये भी ऑर्डर 39 रूल 7 में आदेश दिया जा सकता है. तीसरी बात, फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेज अफोरसेड, जो बात हुई, ऑथराइज एनी सैंपल टू बी टेकन और एनी ऑब्जर्वेशंस टू बी मेड और एक्सपेरिमेंट टू बी ट्राइड विच मे सीम नेसेसरी और एक्सपीडियंट फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग फुल इंफॉर्मेशन और एविडेंस. ये भी किया जा सकता है. द प्रोविजन एज टू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस शैल अप्लाई टू पर्सन्स ऑथराइज टू एंटर अंडर दिस रूल. जो एग्जीक्यूशन में प्रोसेस है वो ही यहाँ लागू होगा. तो ऑर्डर 39 रूल 7 में क्या ऑर्डर पारित किया जा सकता है? फॉर द सेक ऑफ डिटेंशन, फॉर द सेक ऑफ प्रिजर्वेशन, for the sake of inspection, etc. of subject matter of suit. अब ये अपन ने 6 और 7 जो पढ़ा, रूल 6 और 7. रूल 6 पावर टू ऑर्डर इंटरिम सेल, रूल 7 डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट. ये जो दोनों रूल्स अपन ने पढ़े,
तो 8 क्या कहता है, रूल 8 क्या कहता है, इन दोनों के संबंध में क्या बात करता है रूल 6 और 7 के संबंध में? एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर टू बी आफ्टर नोटिस, कि यदि रूल 6 या रूल 7 की कोई एप्लीकेशन लगेगी तो निश्चित रूप से दूसरे पक्षकार को नोटिस देना पड़ेगा। एन एप्लीकेशन बाय प्लेंटिफ फॉर एन ऑर्डर अंडर रूल 6 और 7 मे बी मेड एट एनी टाइम आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। प्लेंटिफ क्या, जैसे ही उसने दावा किया, राइट, जैसे ही उसने दावा किया तो दावे के बाद वो तुरंत प्रभाव से ऑर्डर 39 रूल 6 या 7 की एप्लीकेशन अदालत में लगा सकता है, राइट, और दूसरे पक्षकार को नोटिस देना पड़ेगा। मान लीजिए उसके पास दावे के नोटिस भी नहीं गए, तो यदि वो ऑर्डर 39 रूल 6 ऑर्डर 39 रूल 6 या 7 की एप्लीकेशन लगाता है तो दावे के तुरंत बाद भी लगा सकता है या कभी भी लगा सकता है, लेकिन दावा दायर होना चाहिए, उसके बिना कोई एप्लीकेशन लगेगी नहीं। An application by the defendant for a like order may be made at any time after appearance। लेकिन डिफेंडेंट के लिए क्या बात है? डिफेंडेंट के लिए बात है कि यदि डिफेंडेंट रूल 6 या 7 की कोई एप्लीकेशन लगाना चाहता है तो उसकी अपीयरेंस ज़रूरी है, वो तामील के बाद आ जाए या किसी भी तरह से कोर्ट में आ गया, अपीयर हो गया, देन ही इज़ आल्सो वेरी मच एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस टू सबमिट एन एप्लीकेशन, टू मूव एन एप्लीकेशन अंडर रूल 6 और 7 बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर रूल 6 और 7। समझिए कि अदालत के द्वारा रूल 6 और 7 के तहत कोई आदेश जारी किया जाता है, उससे पहले बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर रूल 6 और 7 ऑन एन एप्लीकेशन मेड फॉर द पर्पस द कोर्ट शैल एक्सेप्ट वेयर इट अपीयर्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग सच ऑर्डर would be defeated by the delay, direct notice thereof to be given to the opposite party। कई बार क्या होता है कि केवल प्लेंटिफ आ गया, दावा कर दिया प्लेंटिफ ने और तुरंत प्रभाव से ऑर्डर 39 रूल 6 की एप्लीकेशन लगाई और ये कहा कि ये चीज़ ऐसी है जो स्पीडी डिके होगी, इसको बेचो, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और दूसरे पक्षकार को नोटिस जाने में अभी समय लगेगा। ऑर्डर 39 रूल 6 ये माना जाता है कि अदर पार्टी मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी बिफोर डिसाइडिंग दीज एप्लीकेशंस। 6 और 7 में जो एप्लीकेशन लगाते हैं तो दूसरे पक्षकार को नोटिस देना चाहिए, लेकिन मान लीजिए नोटिस देना इतनी देरी हो जाएगी, तामील में इतनी देरी हो जाएगी कि ये पर्पस भी डिफीट हो जाएगा, सारा पर्पस डिफीट हो जाएगा इस एप्लीकेशन को लगाने का। ये आम डिके हो जाएंगे सारे करे, स्पीडी डिके हो रहा है इनका, सड़ रहे हैं आम, सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा और पर्पस इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में विदाउट गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टी द ऑर्डर में बी पास्ड। जिस तरह से अपन ऑर्डर 39 रूल 3 की अपन ने बात की थी कि दूसरे पक्षकार को टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन नोटिस देना आवश्यक है, जब तक आप यही साबित नहीं कर दो कि एक्सेप्शनल रेयर केसेस में कि साहब यदि नोटिस जाएगा, समय लग जाएगा और टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन के दावे का मकसद ही खत्म हो जाएगा, वहाँ यहाँ पर भी वही बात है। ऑर्डर 39 रूल 8 में भी ऐसी है कि यही बात है। 9-10 की बात अपन बाद में करेंगे।